Good morning, students. Today we are going to discuss about the properties of definite integral. So today is our lecture 3 and I am dividing the lecture 3 into few parts. तो हर एक पार्ट्स में कुछ कुछ प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर जो है हम लोग जो है सम्स वगैरह करते हैं. तो पहला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 1. Now integration a to b fx dx can be written as integration a to b ft dt. इसका मतलब होता है that is the definite integral is independent of the change of variable. अगर हम लोग इसका वेरिएबल को x के जगह t लिखते हैं और dx के जगह dt लिखते हैं तो इंटीग्रेशंस में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा. तो दैट इज़ डेफिनाइट इंटीग्रल इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल. तो इस प्रॉपर्टी का प्रूफ देखते हैं. तो लेट फाई एक्स बी द primitive of fx. तो therefore phi dash x can be written as fx, phi dash x. So now when we take the integration of a to b fx dx, so it will be phi of x from the definition or from the statement of fundamental theorem of integral calculus. So this can be written as phi of b minus phi of a. So now phi x be the primitive of fx. So if you replace the x by t, we can write as phi t be the primitive of f of x. So therefore phi dash t, if you take phi dash t, it will be f of t. So therefore integration a to b f of t dt we can write as phi of t, lower limit a, upper limit b. So it can be written as phi of b minus phi of a. Now this relation we call as 1, this relation इसको हम लोग b बोलते हैं. Now from 1 and 2 we see that both the right hand side is equal of both the equations, so therefore left hand side must be equal. So fx dx which is same as a to b ft dt. So we see that definite integral is independent of the वेरिएबल. ओके, तो ये वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, प्रोवाइडेड लिमिट कैन नॉट बी चेंज. ओके, लिमिट व्हेन द लिमिट्स आर फिक्स्ड, लिमिट को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, लिमिट जो है फिक्स्ड होना चाहिए. नाउ इसके बाद हम लोग आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी नंबर 2. प्रॉपर्टी 2 को जो है ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशंस प्रॉपर्टी भी बोला जाता है. ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, इस प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे सपोज इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज सेम एज माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स. इसका मतलब यहाँ पर देखो लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है. तो अगर आप इसका लिमिट को इंटरचेंज कर देते हो, लोअर लिमिट को अपर लिमिट में और अपर लिमिट को लोअर लिमिट में, तो आपके जो है इंटीग्रेशंस के सामने एक नेगेटिव साइन आ जाएगा. सिमिलर टाइप का प्रॉपर्टी जो है वो आपने पढ़ा है इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट. तो डिटर्मिनेंट में भी आपने देखा है सेम टाइप का एक प्रॉपर्टी है. इफ़ यू इंटरचेंज एनी 2 रोज और कॉलम देन द डिटर्मिनेंट गेट्स अ नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ इट. तो ये जो ऑर्डर प्रॉपर्टी है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशंस, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसको हम लोग ऐसा पढ़ सकते हैं कि इफ़ द लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशंस आर इंटरचेंज देन द वैल्यू चेंजेस बाय माइनस साइन ओनली. इफ़ द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशंस आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशंस इज चेंज बाय माइनस साइन ओनली. तो इसका हम लोग जो प्रूफ देखते हैं. तो सपोज लेट फाई एक्स be the primitive of fx. So therefore phi dash of x is equal to fx. Now we take the integration a to b
fx dx, which is equal to integration. We have phi x value a to b, that is equal to phi of b minus phi of a. We call this relation is 1. This is nothing but the left hand side. So LHS we get like this. Now take the RHS. Now RHS value is minus b to a fx dx, but fx function has the primitive phi x, so we can write phi x and the limit b to a, and there is a negative sign in front of it, so we can write as phi of a minus phi of b, which can be written as phi of b minus phi of a. That is the equation 2. Now from 1 and 2 you see that right hand sides are equal, so therefore left hand side as well equal, so therefore we can write as a to b fx dx, which is equal to minus b to a fx dx. So what can we say, that if the limits of the definite integrals are interchange, then its value changes by minus sign only. Okay, this property is property 2. Now we go for the next property, which is a very important property, property 3, and after that we will start few sums. We will do some sums. So next is property 3. It is called additivity. Property 3 is called additivity. Now property 3, it is called additivity. If we have the integrations a to b fx dx, which can be written as a to c fx dx, then c to b fx dx, where a less than c less than b. Generally c lies between a and b, but some exceptional cases are there where c is not between a and b. C may be lies outside of the interval a and b, but this is not in our considerations. Maximum problem when you face the problem C will be in the interval a and b. Now going for the proof. Let phi x be the primitive. Phi x be the primitive of fx. Okay. Now as a result, phi dash of x, we have fx. Now take the left hand side. We can write as integration a to b fx dx. Since phi x is the primitive, so we have answer as phi x limit a to b, which is equal to phi of b minus phi of a. Call this is 1. Now take the RHS value. Integration a to c fx dx plus integration c to b fx dx. Now fx has the primitive phi x, so it will be phi x from a to c, and then phi x from c to b. So ultimately we have phi of c minus phi of a plus phi of b minus phi of c. So phi of c get cancelled, so we have phi of b minus phi of a. This relation is called equation 2. Now from 1 and 2, so from 1 and 2 we can see that the right hand sides of both the equations are equal, therefore left hand side should be equal. So we can say that a to b fx dx, which is equal to same as a to c fx dx plus c to b fx dx. This completes our proof. Now one of the most important thing is that the why we introduce this kind of point C, though the if it is integrable from a to b. तो ये कौन सा रीज़न है जिसके वजह से हम लोग जो है सी पॉइंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको हम लोग ज़रा सा एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है. अच्छा, नाउ ये जो प्रॉपर्टी है 3, इसको जो है जनरलाइज भी करके हम लोग लिख सकते हैं. जनरलाइजेशंस, इसके जनरलाइजेशंस क्या है कि अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं ए से बी एफ एक्स डी एक्स
तो देन वी कैन राइट एज a से c1 f(x) dx, देन प्लस c1 से c2 f(x) dx, then ultimately if we have cn points, then cn minus 1 to cn f(x) dx, and then final point cn to be f(x) dx. So where these n points c1 less than c2 less than c3 and generally less than cn minus 1 less than cn less than b, and this is greater than a. So this is the generalizations of this property. Now in which case we uses this property, it is very important. So now if the function is piecewise defined function, piecewise defined functions, or if the integration is discontinuous, if the function is discontinuous at a particular point x is equal to suppose c. Okay, so if the function at x is equal to c f(x) is discontinuous, अगर ये केस होता है f(x) इज़ डिसकंटिन्यूअस अगर हो जाता है तो हम लोग इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस के लिए यूज़ करेंगे, और एट x इज इक्वल टू c f(x) इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये तीनों में से कोई भी एक पॉइंट ऑकर करने से इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज़ करते हैं। तो आप तो ये जानते हो कि डिसकंटिन्यूअस कब होता है, जब कर्व में ब्रेक हो जाता है, नॉन डिफरेंशिएबल सर्व कॉर्नर है, कॉन्टीन्यूअस है लेकिन सर्व कॉर्नर है, फिर भी जो है कर्व डिफरेंशिएबल नहीं होता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, इसको ज़रा सा एक्सप्लेन करते हैं, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन क्या है। ठीक है, इसमें जाते हैं हम लोग। नाउ piecewise defined function, piecewise defined function, a function which is defined by multiple subfunctions. A piecewise defined function is a function which is defined by multiple subfunctions, each subfunction applying to a certain interval of the main function's domain. तो अगर एक फंक्शंस है, वो फंक्शंस के डोमेन में एक सब डोमेन हम लोग लेते हैं और वो पूरा फंक्शंस को पार्ट हम लोग जो है सब डोमेन में डिफाइन करते हैं। तो दिस टाइप का जो फंक्शन होता है इसको पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। तो ये पीस में मतलब टुकड़े में ये फंक्शंस को डिफाइन किया जाता है। इस टाइप का फंक्शंस में बहुत वेल नोन जो फंक्शन होता है वो मॉड है, बॉक्स फंक्शंस है, पार्शियल फ्रैक्शंस है, और लिस्ट इंटीजर फंक्शंस है ना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो बॉक्स फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस एंड लिस्ट इंटीजर फंक्शंस। तो ये है आपका एब्सोल्यूट फंक्शंस। तो एब्सोल्यूट फंक्शन वो एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन होता है, बॉक्स फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। देन आपका आता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एंड देन लिस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये जो डिफिनेशंस है, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन इज़ अ फंक्शन विच इज़ डिफाइंड बाय मल्टीपल ऑफ सब फंक्शन इन द सब डोमेन ऑफ द मेन डोमेन। तो एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये वाला y इज इक्वल टू मॉड x। अगर ये फंक्शंस को आप देखोगे तो इसके पूरे डोमेन में ये है आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो ये इसका पूरा डोमेन है। ठीक है, अब इस डोमेन के अंदर ये जो फंक्शंस जो है एक पार्ट में आता है जिसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, और ज़ीरो से लेके जब हम लोग डोमेन में लेते हैं ज़ीरो से इन्फिनिटी तो ये हो जाता है प्लस एक्स। तो दैट मीन्स ये फंक्शंस को आप दो पीस में डिफाइन कर रहे हो। एक होता है माइनस एक्स वेन एक्स लेस देन ज़ीरो एंड प्लस एक्स वेन एक्स ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। इसी तरीके से सारा फंक्शन जो है ये चारों पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, सपोज़ एक ऐसा फंक्शन है जो ये चारों में नहीं है। फॉर एग्जांपल ऐसा लेते हैं, फंक्शंस पहले ऐसा गया, ये डोमेन का पॉइंट है, और उसके बाद फंक्शन यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हो गया, फिर ऐसा गया, देन सपोज़ ऐसा जाता है, फिर ऐसा जा रहा है ना। तो ये अलग अलग डोमेन में ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड हो गया। तो ये सारा फंक्शन जो है
टुकड़ा टुकड़ा में डिफाइंड है सब डोमेन में, तो दीज फंक्शंस आर generally known as piecewise defined function. So in piecewise defined function we use the additive property. If the function is not differentiable at a particular point, then we use the concept of additive property. If the function is not continuous, then we use the concept of piecewise defined function. अब जो क्वेश्चन ज़्यादातर आता है piecewise defined functions में, वो आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे दो ही फंक्शंस के ऊपर, एक है मॉड फंक्शंस और एक है बॉक्स फंक्शन। तो ये फंक्शंस के ऊपर, लिस्ट इंटीजर फंक्शंस के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। तो मेनली क्वेश्चन होता है बॉक्स और मॉड, और कभी कभी बॉक्स जो है आपको फ्रैक्शनल पार्ट के साथ भी क्वेश्चन में अटैच कर देता है। तो ये दो फंक्शंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें एडिटिव प्रॉपर्टी के लिए, तो सारा चीज़ कवर हो जाएगा। तो अब हम लोग प्रॉब्लम्स पार्ट में जाते हैं। तो प्रॉब्लम्स पार्ट में जाने के लिए आपको दो चीज़ जानना ज़रूरी है। एक होता है नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, ये पहले आप जान लें कौन सा, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। तो ये वो फंक्शन होता है जो इंक्रीजिंग भी होता है और प्लस डिक्रीजिंग भी होता है, एज वेल एज डिक्रीजिंग। तो फंक्शन विच इज़ इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग। तो फंक्शन विच इज़ इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग इज कॉल्ड द नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। तो इसका एक एग्जांपल देते हैं आपको। सपोज ये फंक्शन अगर आप लेते हो साइन फंक्शन, तो ये आप देखोगे कभी इंक्रीज़ भी कर रहा है और कभी डिक्रीज़ भी कर रहा है। तो ये नॉन मोनोटोनिक फंक्शंस है, मतलब थ्रू आउट द इंटरवल में ये कभी इंक्रीज़ भी कर सकता है और कभी डिक्रीज़ भी कर सकता है। अगर आप ये क्वाड्रेटिक फंक्शन लेते हो लाइक दिस y इजिकल टू एक्स स्क्वायर, तो ये फंक्शन जो है यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज़ हुआ है फिर इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये फंक्शन जो है नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है। तो फंक्शन विच इज़ इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग इन इट्स डोमेन, तो ये नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है। तो नॉन मोनोटोनिक फंक्शन का जब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, सॉल्व करने जाएंगे, तो वी यूज़ द ग्राफिकल मेथड। हम लोग ज़्यादातर सम्स में ग्राफिकल मेथड यूज़ करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा यूज़फुल होता है। अगर आपका फंक्शन मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक फंक्शंस है आपके पास, मतलब अ फंक्शंस विच इज़ आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, जो फंक्शन इंक्रीज़ करेगा या फिर डिक्रीज़ करेगा ऑन इट्स इंटायर डोमेन, पूरे डोमेन में, तो उस फंक्शंस को हम लोग बोलेंगे मोनोटोनिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर आप e⁻x लेते हो, तो ये फंक्शन जो है पूरे डोमेन में इंक्रीज़ करता है, तो दिस इज़ अ मोनोटोनिक फंक्शंस। अगर आप लॉग फंक्शन लेते हो, log x/c, तो ये भी फंक्शन जो है इंक्रीज़ कर गया, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शंस, मोनोटोनिक फंक्शंस। नाउ इफ़ यू टेक दिस फंक्शंस y इजिकल टू सपोज -x³, तो दिस फंक्शन इज ऑल्सो अ डिक्रीजिंग फंक्शन, तो इट इज़ मोनोटोनिक। तो ये अपने पूरे इंटरवल में आइदर इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम जब हम लोग सॉल्व करने जाएंगे डेफिनाइट इंटीग्रल में, तो वी यूज़ द एनालिटिकल मेथड। इसमें आपको ग्राफ नहीं ड्रॉ करना होगा, ये ज़्यादा हेल्पफुल है। एनालिटिकल मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ग्राफिकल मेथड वी अप्लाई फॉर द नॉन मोनोटोनिक फंक्शंस। तो जो फंक्शन आइदर इंक्रीज या डिक्रीज एक साथ होता है, उसके लिए हम लोग ग्राफिकल अप्रोच यूज़ करेंगे। ठीक है, तो नाउ अब हम लोग कुछ सम्स करते हैं। सम नंबर 1, तो सम्स डिपेंड्स ऑन बॉक्स फंक्शन। आज हम लोग कुछ बॉक्स फंक्शंस के ऊपर में या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF के ऊपर में कुछ सम्स करते हैं, डेफिनाइट इंटीग्रल्स हैं GIF के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1, इसका एक पार्ट है, फाइंड द इंटीग्रेशन 0 से 3 बॉक्स ऑफ x dx। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन 0 to 2 बॉक्स ऑफ x² dx। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन 0 से 1.5 बॉक्स ऑफ x² dx। क्वेश्चन नंबर 4, 1 to 2 बॉक्स ऑफ 3x, इंटीग्रेशन 1 to 2 बॉक्स ऑफ 3x dx। ठीक है, अब इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। नंबर 1, नाउ 0 से 3 बॉक्स ऑफ x। हम लोग को क्या पता है, बॉक्स फंक्शन जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो बॉक्स का डेफिनेशन है, इफ़ बॉक्स सपोज लेस देन
आई इज़ एन इंटीजर आई प्लस 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू आई, तो वी कैन राइट एज बॉक्स एक्स इज इक्वल टू आई, है ना, ये इसका डिफिनेशन होता है। तो हमेशा बॉक्स जो है हम लोग को 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर में उसको जो है ब्रेकअप करना पड़ता है, वहाँ से हम लोग उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर 0 से 3 आप देखते हो, एक्स वेरिएबल मूव कर रहा है 0 से 3 तक, तो ये एक्स का जो है रेंज दिया हुआ है 0 से 3, तो इसमें आप क्या क्या ले सकते हो, इंटीग्रल पॉइंट 1 एंड 2। तो आप इंटरवल को कुछ इस तरीके से ब्रेकअप कर दो, 0 से 1 बॉक्स ऑफ एक्स डी एक्स, देन 1 से 2 बॉक्स ऑफ एक्स डी एक्स, देन 2 से 3 बॉक्स ऑफ एक्स डी एक्स। अब आपको क्या पता है कि 0 से 1 के बीच में बॉक्स का जो है उसका फंक्शंस क्या होता है, वैल्यू 0 होता है, तो 0 डी एक्स। देन अगर आप 1 से 2 लोगे तो बॉक्स का वैल्यू जो आता है वो 1 आता है, तो 1 से 2 के अंदर बॉक्स का वैल्यू 1 डी एक्स। देन 2 से अगर हम लोग 3 लेते हैं तो इस रेंज में बॉक्स का वैल्यू 2 होता है, बॉक्स ऑफ एक्स 2 होता है। तो नाउ 0, ये तो आपका 0 हो गया, देन एक्स वैल्यू 1 से 2, देन यू हैव 2 बॉक्स ऑफ एक्स वैल्यू 2 to 3, तो देयरफॉर वी हैव 2 minus 1 1, देन 2 into 3 minus 1 अगेन 1, तो 2 plus 1 that is 3, तो दिस इज द आंसर, आंसर इज 3। नाउ गो फॉर द प्रॉब्लम नंबर 2, 0 to 2 बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। सोल्यूशन 2, 0 से 2 बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है कि ये जो आपका एक्स है, वेरिएबल एक्स, ये कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से 2 तक। तो अगर 0 से 2 तक वेरी करता है तो आपका ये जो फंक्शन है इसको आप ऐसा ले लो एफ एक्स एक फंक्शन है जो एक्स स्क्वायर है, इसी का तो आपको बॉक्स निकालना है एफ एक्स का। तो ये जो फंक्शन एफ एक्स है तो ये एक्स स्क्वायर है, ये कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है ये देख लेते हैं, 0 से 4। तो अगर 0 से 4 वेरी करता है तो इसके अंदर एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ इंटीग्रल पॉइंट देता है, तो 1 पे इंटीग्रल वैल्यू है, 2 पे है और 3 पे है, ठीक है। तो अगर फिर से हम लोग इसका स्क्वायर रूट कर लेते हैं तो इसका स्क्वायर रूट करने से क्या क्या आएगा, देन वी गेट स्क्वायर रूट, तो वी गेट स्क्वायर रूट ऑफ 0 0, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज रूट 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज रूट 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। तो नाउ वी आर गोइंग टू ब्रेक द इंटरवल फ्रॉम 0 to 1, देन 1 से रूट 2, देन रूट 2 से रूट 3, देन रूट 3 से 2। इस इंटरवल में हम लोग ये फंक्शंस को जो है ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो ये कैसा आएगा देखो, इंटीग्रेशन 0 से 2 बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स विच कैन बी रिटन एज 0 से 1 लेते हैं और ये बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, देन 1 से रूट 2 बॉक्स ऑफ एक्स डी एक्स, देन रूट 2 से रूट 3 बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, एंड देन फाइनल इंटीग्रेशंस रूट 3 से आपको 2 लेना है बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, ओके। तो नाउ 0 से 1, जब x का वैल्यू 0 से 1 होता है तो बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का वैल्यू वेरी करता है 0 से 1। तो 0 से 1 के बीच में अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू है तो उसका बॉक्स जो है 0 आएगा। तो फर्स्ट फंक्शन को जब हम लोग ब्रेक करेंगे 0 से 1, तो बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वेरी फ्रॉम 0 to 1, तो बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर गिव 0। देन व्हेन योर एक्स वेरी फ्रॉम 1 to रूट 2, एक्स का वैल्यू अगर 1 से रूट 2 होता है, एक्स का वैल्यू यहाँ से यहाँ है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू वेरी करेगा 1 से 2 और उसके जब बॉक्स निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट रूट 2 से रूट 3, तो एक्स का वैल्यू रूट 2 से रूट 3 है, इसी इंटरवल में ये एक्स का लिमिट है, तो एक्स स्क्वायर जो मेरा वैल्यू है वो 2 से 3 है। तो 2 से 3 अगर एक्स स्क्वायर है, इसका अगर बॉक्स लेंगे तो वी गेट ओनली 2 डी एक्स, देन रूट 3 से 2। अगर आपका x का वैल्यू रूट 3 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, ये x का लिमिट है, तो एक्स स्क्वायर जो है ये वैल्यू 3 से 4 के बीच में लाई कर रहा है। तो 3 से 4 के बीच में इस वैल्यू का अगर आप बॉक्स निकालोगे तो यू गेट ओनली 3 डी एक्स। तो व्हाट वी हैपन, फर्स्ट इंटीग्रल तो 0 हो गया, दूसरा वाला x 1 से रूट 2, देन 2 बॉक्स ऑफ x
√2 से √3, देन 3 बॉक्स ऑफ x √3 से 2। यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेंगे √2 - 1, यहाँ से वैल्यू आएगा √3 - √2, देन 3 2 माइनस √3। नाउ व्हाट वी गेट, यहाँ से अगर आप देखते हो तो यहाँ पर देखो 3 × 2 6, 6 - 1 यू गेट 5। अगर आप √2 देखते हो तो √2 और -2 √2 यू हैव -√2 और तो कुछ नहीं है, तो देन वी हैव -√2। √3 देखते हैं, 2 √3 -3 √3 वी हैव ओनली -√3। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3। नाउ वैल्यू ऑफ x यहाँ पर जो है 0 से 1.5 है। क्वेश्चन नंबर 3, ज़ीरो से 1.5 बॉक्स ऑफ x²। यहाँ पर f(x) जो है वो x² है, ये मेरा फंक्शंस है। तो ये सारा फंक्शन जो भी हम लोग कर रहे हैं अभी तक, ये सारा फंक्शन जो है मोनोटॉनिक है, मतलब ये इंक्रीजिंग है गिवन डोमेन में। तो इसी के लिए हम लोग इसको एनालिटिकल मेथड में सॉल्व कर रहे हैं, ग्राफिकल अप्रोच का ज़रूरत ही नहीं है। तो नाउ हियर लिमिट इज़ 1.5। तो नाउ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x लाइंग बिटवीन 0 to 1.5 x² जो मेरा फंक्शंस का वैल्यू है x² दैट इज़ f(x). तो फंक्शंस का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, ये 0 हो जाएगा, ये 1.5 का वैल्यू 2.25। तो फंक्शंस जो है यहाँ से यहाँ तक लाई कर रहा है, तो इसके बीच में इंटीग्रल पॉइंट कौन कौन से, 1 एंड देन वी हैव 2, 1 and 2, दो ही पॉइंट है इंटीग्रल पॉइंट। तो अगर ये आपका इंटीग्रल पॉइंट आ गया, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, फिर इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं, वी गेट 0, देन 1, देन √2 और 2.5 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो वी गेट अगेन 1.5। तो ये पता चला कि अगर आपका x का वैल्यू 0 से 1 है तो x² का वैल्यू लाई करेगा 0 से 1 के बीच। अगर आपका x का वैल्यू 1 से √2 है तो फंक्शंस का वैल्यू 1 से 2 हो जाएगा। और हम लोग को पता है कि बॉक्स को डिफाइन करने के लिए वी नीड 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो नाउ 0 से 1.5 बॉक्स ऑफ x² dx। फर्स्ट वैल्यू 0 से 1 x का वैल्यू 0 से 1, देन बॉक्स x 0 से 1 x² का वैल्यू 0 से 1 और इसका बॉक्स लेंगे तो वी गेट 0। सेकेंड 1 से √2, इफ़ यू टेक 1 देन यू हैव टू टेक √2। नाउ x लाइंग बिटवीन 1 से √2, देन द फंक्शन लाइंग बिटवीन व्हाट 0 to 2, 1 to 2, 1 से 2 के बीच में आपका x² है, इसका अगर बॉक्स कंसीडर करोगे तो यू गेट ओनली 1 dx। देन यू हैव √2 से 1.5। Now √2 to 1.5, if the value of x lying between these, then x² is 2 to 2.5 और 2 से 2.5 x² का वैल्यू अगर इसका बॉक्स लोगे तो you get only 2, तो 2 dx। Now this part is vanish, तो we have dx का इंटीग्रेशन x, तो वैल्यू इज़ 1 से √2, then we have 2, then x का वैल्यू लोअर लिमिट √2 अपर लिमिट 1.5, तो √2 - 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1.5 माइनस √2। तो देयरफॉर 2 × 1.5 3, 3 - 1 2, 2 √2 और यहाँ पर √2 दैट वी हैव -√2। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम नंबर 3। ये प्रॉब्लम नंबर 3 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में ज़्यादातर टाइम जो है देते रहता है। आप लोग को ये सम्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जाते हैं, दैट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन ऑफ 4। इसमें देखो आपको इंटीग्रेशन दिया i का वैल्यू 1 से 2 बॉक्स ऑफ 3x dx। तो यहाँ पर मेरा f(x) जो फंक्शन है वो 3x है। तो सबसे पहले हम लोग को वेरिएबल के ऊपर कंसीडर करना पड़ता है, वेरिएबल कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है। तो x इज़ अवर वेरिएबल लाइंग बिटवीन 1 से 2, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। नाउ 3x वी मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाई 3, तो वी हैव 3 × 1 3, 3 × 2 6। अब इसके बीच में कोई इंटीजर है क्या? यस, इंटीजर आता है, 4 और 5 ये दो इंटीजर है। तो फ्रॉम दिस 3x दिस इज़ माई f(x) वैल्यू, आई एम फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x अगेन। तो ये x हो जाएगा 1, 3/3 1, देन 4/3,
then 5/3 and then 6/3 2. Okay, so now when we take the value of x from 1 to 4/3, so therefore we break this given question as 1 to 4/3. तो अगर x का वैल्यू 1 से 4/3 होगा तो 3x का वैल्यू 3 से 4, अगर इसका कोई बॉक्स लेता है तो आंसर 3 आ जाएगा, 3dx प्लस 4/3 टू 5/3. तो x का वैल्यू 4/3 से 5/3 के बीच में है, इस रेंज में. तो देयरफॉर 3x का वैल्यू 4 से 5 के बीच में. अगर इसका आप बॉक्स लेते हो तो यू गेट 4 ओनली, 4dx. देन 5/3 टू 2, 5/3 टू 2. नाउ इस रेंज में आपका x है, तो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट द फंक्शन 5 to 6, और इसका अगर बॉक्स लेते हैं तो वी गेट ओनली 5. 3 4 3 बाहर, और dx के लिए x 1 to 4/3, 4 बाहर, dx का इंटीग्रेशन x 4/5 to 5/3. लास्ट पार्ट 5 बाहर, dx का इंटीग्रेशन x 5/3 से 2. तो देयरफॉर वी हैव 3 4/3 minus 1, then 4 5/3 minus 4/5, then we have 5 2 minus 5/3. तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो 4 minus 1 4 minus 3 1 1/3, दैट इज़ वी हैव 1 ओनली, है ना. और यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करते हैं तो वी हैव 4 इंटू 3 इंटू 5 15. नाउ 25 और इधर हो गया आपका 12, तो दैट मीन्स वी हैव 13 ना. 12 25 माइनस 12 13, यस. देन यहाँ से आपको आ जाएंगे 3 इंटू 2 6 माइनस 5, दैट मीन्स 1/3, तो दैट इज़ नथिंग बट 5/3, है ना. तो नाउ व्हाट वी डू, वी टेक द अगेन LCM. अगेन इफ यू टेक द LCM, what will happen, जरा सा 4/5, ओके. अच्छा, यहाँ पर एक लिमिट जरा सा रॉन्गली मैंने पुट कर दिया, 4/3 था, तो इट इज़ नथिंग बट 4/3 से 5/3, तो इट विल बी व्हाट 4/3. तो नाउ इट विल बी 4/3. ठीक है, तो अब इसका आंसर आएगा लाइक 4 minus 3 1, तो दैट इज़ 1 प्लस. ना यहाँ से आप देखो 5 minus 4, दैट इज़ 1, 1/3, दैट मीन्स 4/3. एंड फ्रॉम हेयर यू गेट 3 इंटू 2 6 minus 5, तो दैट इज़ 1/3, दैट मीन्स 5/3. तो ये हो जाएगा LCM 3, तो 3 + 4 + 5, तो 9 और 3 12, 12/3. तो आंसर इज़ 4 इज़ द आंसर. ये चारों क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो ये सब क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से जो है प्रैक्टिस करना. नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is given as find the integrations from 0 to 2. I is equal to 0 से 2, then x square box of x dx. Now how to solve this? Now in this question you see that the value of the variable varies from 0 to 2. So x value varies from 0 to 2. X square values, x square is not given, only x. So now when we consider the box of x, because inside the box only x is given, so one integral point is there between 0 to 2 is 1. So we break the integral like this, x square box of x dx, which is equal to 0 to 1 x square box of x dx, then plus 1 से 2 x square box of x dx. now बॉक्स ऑफ x, अगर x का वैल्यू 0 से 1 में लाई करता है तो बॉक्स ऑफ x का वैल्यू 0 हो जाएगा. तो 0, ये वैल्यू 0 हो गया, 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0, तो टोटल इंटीग्रेशन बिकम 0. नाउ x का वैल्यू 1 से 2 में है, तो बॉक्स ऑफ x का वैल्यू 1, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर वी हैव ओनली एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1 से 2 dx. तो वी हैव व्हाट x³ by 3, देन
1 से 2. तो अल्टीमेटली वी हैव 2 cube, that is 8/3 minus 1/3. Now answer will be 7/3. Now we are going to solve next question, that is question number 3. This question is also very interesting. Now we have to find integration 0 to x t dt. Integration 0 to x box of t dt. Now how to solve this? Now first of all, the x is not given, so we can consider x is equal to like integral part of x, that is the box of x, and then fractional part of x. So now where n is equal to integer, that is nothing but box of x. If lying between f is equal to fractional part of x, we can write as fractional part of x which belongs to 0 to 1. तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि अगर आपके पास कोई पॉइंट है 2.4, तो आप उसको ऐसा लिख सकते हो, मतलब सिर्फ 2.4 एक नंबर है, तो आप उसको ऐसा लिख सकते हो 2 + 0.4. तो ये जो 0.4 है ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, और ये इसका इंटीग्रल पार्ट है और ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट. अगर आपके पास -2.4 है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो -3 + 0.6. तो हमेशा ये पार्ट जो है 0 से 1 के बीच में होना चाहिए. 0 हो सकता है लेकिन 1 नहीं हो सकता. तो नाउ अब इसको अगर हम लोग ब्रेकअप करते हैं तो वी कैन राइट इन दिस वे 0 से 1 बॉक्स ऑफ टी डी टी, देन 1 से 2 बॉक्स ऑफ टी डी टी, देन वी हैव 2 से 3 बॉक्स ऑफ टी डी टी, एंड फाइनली वी हैव n-1 2n box of t dt, and last point that is n2 n plus f box of t dt. तो नाउ लुक एट दिस पॉइंट. अगर आपका t का वैल्यू 0 से 1 में तो बॉक्स ऑफ t 0 हो जाएगा, और अगर आपका t का वैल्यू 1 से 2 है तो उसका बॉक्स ऑफ t जो है 1 होता है. देन आपके पास बचे dt. अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा t लिमिट 1 से 2. तो सिमिलरली यहाँ 2 से 3 t है तो बॉक्स ऑफ जो है उसका 2 हो जाएगा. देन इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t रेंजिंग फ्रॉम 2 to 3. इन दिस वे लास्ट पार्ट यू हैव t, और यहाँ से n-1 ये जो है आपका बाहर आ जाएगा, ये बॉक्स ऑफ t का वैल्यू है. और यहाँ पर आपको dt को आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको t आएगा, और इसका लिमिट जो है लोअर लिमिट n-1 अपर लिमिट n. लास्ट पार्ट में बॉक्स ऑफ t का वैल्यू क्या होगा, जब t का वैल्यू n से n + f है तो आपको आंसर n आएगा, और इसका t और इसका आपको dt का इंटीग्रेशन t लिमिट लेना है n से n + f. तो नाउ व्हेन वी पुट 2 देन -1 देन वी गेट 1. तो 1, नेक्स्ट वी हैव 2 देन 3. इन दिस वे वी हैव n-1, क्योंकि n माइनस ऑफ n + 1 n-1 प्लस n इंटू f. यहाँ पर आप n + f -n बैठाओगे तो n कट के f आ जाएगा. Now this is the sum of the natural number starting from 1 to n-1, which can be written as n into n + 1 divided by 2 plus of nf. तो यहाँ से ये दोनों कट गया, तो अल्टीमेटली यू हैव n into n-1 by 2 then nf. What is the value of n? Box of x. तो box of x, then box of x -1 by 2, then plus box of x, and f value is fractional part of x. This is the answer. Hope all of you understand this. Now we go for the next problem. ये भी प्रॉब्लम काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है. क्वेश्चन नंबर 4. नाउ इंटीग्रेशन जो है वो लाई कर रहा है आपका 0 से 2 पाई. आपको इस फंक्शंस का वैल्यू निकालना. क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई और इसका वैल्यू बॉक्स ऑफ sin x dx. तो सबसे पहले आप देखो y = sin x, ये जो फंक्शन है ये है आपका नॉन मोनोटोनिक, मतलब ये फंक्शन इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है इन इट्स डोमेन में. तो ये सम्स को सॉल्व करने के लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा. ग्राफिकल मेथड यूजफुल, वी यूज़ द ग्राफिकल मेथड. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द curve of y = sin x.
बिटवीन द इंटरवल 0 to पाई। सपोज ये इंटरवल ऐसा जा रहा है, तो ये 0, ये पाई और ये हो गया आपका 2 पाई। नाउ टेक द इंटीग्रल पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस। तो इंटीग्रल पॉइंट 1 देन -1। इससे ज़्यादा अगर आप पॉइंट लोगे तो उससे जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे वो कर्व को कट नहीं करेगा। तो ये लाइन जो आपको कर्व को कट कर रहा है दैट इज़ y = 1। ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम y = -1, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस विच इंटरसेक्ट योर कर्व हियर y = 0। एंड ये जो कट किया आपका कर्व को ये पॉइंट में, इस पॉइंट में और इस पॉइंट में कट किया। ये वाला जो लाइन है इस पॉइंट में कट कर रहा है, ये वाला लाइन यहाँ पर कट कर रहा है। तो जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट हुआ है वो सारे पॉइंट से आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। तो इस पॉइंट से ऑलरेडी वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया गया है। यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, यहाँ से करो। ये आपको बॉक्स फंक्शन ड्रॉ करने का जो है वो रूल है। ये करने के बाद चूज़ एनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जहाँ पर आपका कर्व इंटरसेक्ट किया हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, सपोज ये पॉइंट, तो ये पॉइंट से आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है टू द नियरेस्ट वर्टिकल लाइन एंड पुट अ होल साइन, पुट अ एम्प्टी सर्कल ऑन द राइट हैंड साइड इफ द कर्व इज इंक्रीजिंग। कर्व इंक्रीज कर रहा है तो ये यहाँ से जाएगा, जाने के बाद एक तो एम्प्टी सर्कल, ब्लैंक सर्कल आपको देना है ड्यू टू द कर्व इज इंक्रीजिंग। इफ द कर्व डिक्रीजिंग पुट द ब्लैंक सर्कल और एम्प्टी सर्कल ऑन द लेफ्ट। तो ये आपका आंसर आ गया। 0 से पाई के बीच में ये आपने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया वर्टिकल लाइन तक, देन यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया। नाउ आप यहाँ पर जब पहुँचे पाई में वैल्यू साइन का 0 आ गया, उसका बॉक्स भी 0 होगा। अब जैसे ही जाओगे नीचे की तरफ तो ये वैल्यू इधर आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू। उसका अगर आप बॉक्स लोगे जो 1 से छोटा है, -1 से बड़ा, उसके जैसे ही आप बॉक्स लोगे तो ये -1 पे आप पहुँच जाओगे। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद आपका कर्व यहाँ से शुरू हो जाता है ना। तो अब ये जो कर्व डिक्रीजिंग है तो आपको लेफ़्ट साइड में एक एम्प्टी सर्कल रखना होगा, क्योंकि जैसे ही आप पाई में जाते हो तो आप इधर नहीं रहते हो, ये एक्स एक्सिस में आ जाते हो। फिर उसके बाद ये नियरेस्ट वर्टिकल लाइन में आपने ड्रॉ कर दिया लाइन, ये जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कर्व इंक्रीजिंग है तो राइट साइड में आपका एक एम्प्टी सर्कल होगा। क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचोगे 2 पाई पे, जैसे ही आप 2 पाई में पहुँचोगे तो कर्व का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब साइन एक्स का वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये पता चला कि 0 से पाई अगर लेंगे तो बॉक्स ऑफ साइन एक्स 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक y का वैल्यू जो है 0 है, क्योंकि आपका कर्व y = साइन एक्स है। तो आप साइन एक्स का बॉक्स ले रहे हो, तो यहाँ पर 0 से पाई इंटरवल में हम लोग ब्रेक करते हैं। तो 0 से पाई आवर इंटीग्रल ब्रेकअप एज 0 से पाई। तो इस इंटरवल में फंक्शंस का वैल्यू 0 आया, तो 0 dx। देन वी टेक फ्रॉम पाई टू 2 पाई, तो पाई से 2 पाई। अगर यहाँ पर देखोगे तो फंक्शंस का वैल्यू -1 आ रहा है, तो -1 dx। -1 फंक्शंस का वैल्यू मतलब बॉक्स ऑफ साइन एक्स का वैल्यू -1 है। तो ये तो 0 हो गया, ये वाला पार्ट आपका -1 बाहर। देन x, और x का जो है आपको लिमिट लेना है पाई से 2 पाई। तो अल्टीमेटली आप -पाई देन 2 पाई -पाई दैट इज इक्वल टू -पाई। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। देन वी मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपको एज ए होमवर्क हम दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए। इंटीग्रल 0 से 2 पाई बॉक्स ऑफ cos x dx, ये आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर क्या आता है आप लोग मुझको बताना। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ये बॉक्स फंक्शंस और ये जो हम लोग का एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है उसी के ऊपर में एडिटिव प्रॉपर्टी जो है कंटिन्यू होगा। मतलब ये लेक्चर 3 का ये पार्ट 1 था, पार्ट 2, पार्ट 3 करके लेक्चर्स बनाएंगे और सारा जो है प्रॉपर्टी एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी 1 से लेके 3 प्रॉपर्टी तक हम लोग बॉक्स फंक्शन और मॉड फंक्शंस ये दोनों को कवर करना है। तो बॉक्स फंक्शन कुछ ही सम्स हम किए हैं, नेक्स्ट क्लास में और कुछ सम्स करके मॉड में जाएंगे, फिर उसको कंप्लीट करते हैं। अगर स्टूडेंट्स और जो भी मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं, अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह काफ़ी अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप लोग प्लीज़ इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसके ऊपर कमेंट कीजिए। और मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सम्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। मैं उसके ऊपर एक वीडियो करके आपको जो है उसको अपलोड करूँगा। और इसके अलावा आप मुझे जो है व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप मुझको जो है इसमें व्हाट्सअप भी आप कर सकते हैं।
और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।